So we are starting and we have maximum 30 minutes of this activity. So we are starting from Sarananu Lagavar. Please tell us actually the vision of this policy and vision of department and what do you think, why do we need to introduce this policy in the context of city? You, Professor. If we look at the geography of the Sindh, we observe that we have two kinds of populations, urban and rural. In urban, metropolitan cities, municipal corporations, and big towns, and rural areas, the population is scattered. So we opened the schools of, especially primary, two-room and one-room schools, without giving any forthcoming or future strategy how pupils will be studying up to the matric class in schools of Sindh. So the government of Sindh notified school clustering policy 2016. That policy was also like this school clustering 2021. In that school clustering policy 2016, the department said that there should be a collaboration in primary and secondary schools, primary and post-primary schools, so that the teachers may collaborate with each other for learning processes. That policy was revised in 2021 and unit council based school clusters were made. So why these clusters are made? Unit council, municipal committee, municipal corporation or unit committee based. Actually, out of total 40,800 schools, majority of schools are primary and nearly 36,000 primary schools. And all these schools, majority of these schools are one teacher, 60%. One teacher or two teacher, one room, two room schools. So there is a big gap. I mean the school isolation and teacher isolation. The major portion of primary schools are isolated and not in close touch with the teachers, senior teachers, experienced teachers. It looks that the department wants only primary education in rural areas. That was not clear. So the government of Sindh consulted the stakeholders, directors of schools, DEOs, CEOs, and the head teachers and teachers in the conferences like today we are here. And the consultations finalized that there should be cluster-based policy so that these vulnerable schools of one teacher, two teacher primary schools should be with close coordination with post-primary schools. Because we have to promote these primary children from grade 5 to 6 and onwards. So major recommendation was that the cluster should be unit council or unit committee based, and the number of schools and number of teachers should be made in consideration while preparing the cluster. So the rural cluster is based on unit council, nearly 40 schools, and the urban cluster is 15 or near to 15 schools in town committee, municipal corporation, or unit committee in metropolitan city. So this was the strategy of preparing school clusters. So the objectives of the policy are mainly decentralization of the administration and the continuous professional development in these clusters so that the teachers may coordinate with each other and those schools who are having one or two teachers, they may coordinate with senior teachers and maybe continuously
professionally developed and professionally trained by the seniors. So the CPD was a major objective of this school clustering policy. And other objectives also the decentralized administration and financial resources also. So the government of Sindh also notified the decentralized administrative powers to the cluster teachers during February 2022-23, and the government of Sindh says that the powers of administration from district Talaka should be shared with the school cluster head teacher, so that teachers may decide their own decisions in the cluster, because in Sindh there are different geographical behavior in the different areas. We have deserts in Thar, Umarkot, Nara of Khairpur and Salepat sector. These are also Sangad, Achhodokar. These are very remote areas, and mountainous areas of Jamshoro, Gadu, and also the Kacho area of the Khanubala and also the Jamshoro district. So this school clustering policy, as the teachers and head teachers presented today, they say that the coordination between the vulnerable small schools and the big schools are made effective with this experience of 2 to 3 years. So it means that the vision of the government of Sindh School Education Department was successful in this piloting program. So this was of the vision of the school clustering, and the goal is the quality education and maximum access of children to the school education. So this is only possible through school clustering policy and SAP. Thank you. Thank you, sir, for your comprehensive response. The school clustering policy, especially talking about CPD. So, Dr. Nazim is there, and we'd like to ask Dr. Saab to tell us about the main objective of this revised CPD model, and differentiate with the previous model already we had, and how we can differentiate the huge difference between previous model and this revised model of 2020. Thank you, Dr. Mehta. Actually, CPD model जो previous हमारे implemented था उसमें, और जो existing है जो हमारे practice में है, आपका सवाल ये है कि उनकी क्या डिफरेंस है। CPD एक्चुअली हमारे जो नीड है टीचर के साथ उस बच्चे तक पहुंचने की, जो हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं टीचिंग की, उसमें वो नहीं है। तो ट्रेडिशनल से आपको इंटरैक्टिव बनाने के लिए ये महसूस किया गया कि हमारे बच्चे तक वो इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कंटिन्यूसली उस टीचर की भी इन्हांस करे क्वालिटी को, और उसके साथ बच्चे के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स है उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करे। तो प्रीवियसली जो हमारे ये ट्रेनिंग हुआ करती थी डिफरेंट, तो वो स्पेसिफिकली एक टाइम ओरिएंटेड हुआ करती थी और उनका कोई फॉलो अप नहीं होता था, जस्ट ट्रेनिंग दी और अपने स्कूल में चले जाते थे। यहाँ पे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जीटी से एससी से आपके ट्रेनर्स को जाते हो, वो जो ट्रेनिंग्स हैं मेंटीज हैं, वो फिर स्टूडेंट के अंदर ये कैस्केडिंग प्रोसेस है। और इसकी ब्यूटी ये है कि ये मकसद है कि एक पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक ये कंटिन्यूस जा रही है, और अल्टीमेटली फोकस उसमें हमारा चाइल्ड है, बच्चा है, जो एक क्वालिटी एश्योरेंस का इंडिकेटर है। तो इस वाले मॉडल में, इस प्रैक्टिस में और प्रीवियस में ये था
कि वो नॉन कंटिन्यूस थी और उसके अंदर कोई फॉलोअप का प्रोसेस या कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक मैकेनिज्म है। अब जो ये स्किल अप की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस पर जो ये हम होप कर रहे हैं कि जो 20 क्लस्टर से पैलेटिव हुई है की सारी सक्सेसेस जो हमारी चीज़ और इतने सारे टीचर्स ने यहाँ पे शेयर किए हैं, डेफिनेटली ये हमारी चेंज है हमारे एजुकेशन के अंदर, उस क्वालिटी के अंदर जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी की हैं। और हम फील्ड में भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक इन्रोलमेंट के सूरत में हमारे पास एक इंक्रीज हो रही है और उनकी इंटरेस्ट लेवल बढ़ रही है। तो ये इसका एक जो मेरे नज़दीक है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। यस सर। Thank you, sir, for talking about CPD model and different modules and different manuals we have developed. अच्छा, आप लोगों ने we have developed manuals and modules, तो अब वो जो modules हैं उनको जाहिर है कि हमने क्लस्टर बेस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना था, और क्लस्टर में हमें वो डिस्कशन चाहिए, वो हेड की सपोर्ट चाहिए, जिसमें वो थीम जो सेंट्रलाइज टू डिसेंट्रलाइज हो रही है और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उस हवाले से हमारे साथ मैडम फरजाना चन्ना है, तो हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं कि क्या समझते हैं कि किस लेवल पे आप लोग इस थीम को अप्लाई करने में कामयाब रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर शुरू में हमारी चीज़ तो ऐसी हाँ स्टार्ट में जो है हमें थोड़ी परेशानी हुई इसको अप्लाई करने में, हमारे जीटीज को एसीज को, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाते थे, वहाँ पे ये नहीं होता था कि ये हमारे पास आएंगे, क्योंकि ऐसे जो हमारे फीडर स्कूल है वो कहते आप किसकी इजाज़त से आए हो, क्यों आए हो, क्या करते हो, तो उस पर हमने उनकी विजिट की, बार बार विजिट की, उसे हमें अब आ गए ये जो ये इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उनकी तरफ से बाकायदा इंतज़ार किया जाता था कि हमारे पास ये आपके क्यों नहीं आए, ये मेरी एक बहुत सारी अच्छी है। और मेरे जो एसीज हैं जीटीज हैं उनको भी पहले परेशानी थी, लेकिन अब वो अपना पेयर बना के मेरे से शेयर करते, जैसे ऑब्जर्वेशन के लिए हो जाते हैं तो पेयर में चले जाते हैं, आज इसको स्कूल मिल जाएगी, क्योंकि जो है एक अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ बन गई है। पहले मेरे साथ को मीटिंग करते हैं और वो सारी जो उनकी इशूज़ होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको सॉल्व कर सकूँ, लेकिन इनको शाबाश हो तो उन्होंने 2 साल बगैर किसी के वो सबके वो रवैये भी बर्दाश्त किए और अपने खर्च से, जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल, खासतौर से जो मेरी फीमेल्स हैं उनको बहुत परेशानी होती है दूसरे अगर इसको कामयाब बनाना है, लेकिन ये जो कामयाबी है इनकी एससीज की और जीटीज की, उन्होंने अपने भी आप पे मेरे ख्याल से मेरे कलेक्शन में 80% जो है वो कामयाबी से निकल रहा है, बाकी 20% है इंशाल्लाह हमारी रिमेनिंग साइकिल रहती है, उसमें इंशाल्लाह हम 100% जो टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन आगे चलाने के लिए अगर इनको कोई एप्रिसिएशन मिल जाए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई ऐसा प्रोग्राम हो, ऐसी कोई सर्टिफिकेशन हो जाए या इनका कोई ऐसा अलाउंस हो जाए तो उनकी ट्रेनिंग में फिक्स हो जाए तो उनको मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हार्ड एरिया हो या हमारा रूरल या अर्बन एरिया, इसमें ये हमारे इतने ट्रेंड हो गए अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और हमारे हर स्कूल तक के जो है हमारे मेंटीज जो है वो जा सकते हैं और उनको अपनी जो भी इनके तजुर्बात है, जो भी सीखते हैं आपको ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ अप्लाई करते हैं और हमें वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी काफ़ी जो है ऐसे जो है वो कहती है कि हमारी मेंटीज चेंज करो, एक दफ़ा ये हुई अब जो है एक, तो ये मेरे ख्याल से तो इसको चलाने के लिए मेरे से ज़्यादा इनका हाथ है, तो ग्राउंड में फील्ड में ज़्यादा इनका हाथ है। पहले मैं कहा कि नाउ दे आर वेरी मच मोटिवेटेड, पहले कुछ मूव करने के जो चैलेंजेस थे वो थे
लेकिन अब जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड है। तो एक और एचएम जो है वो हमारे साथ हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है चैलेंजेस में और बहुत सारी इस तरह की चीज़ों में। तो हमारे साथ इस वक्त दुर्लभ शाह भट्टी हैं, ऑल्सो वर्किंग एज हेड। तो मैडम से हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मैडम चना ने बताया कि हमारे में वो मोटिवेटेड हैं एंड दे एक्टिवली परफॉर्मिंग इन द फील्ड। तो आप हमें ये बताएं कि बच्चों की जो लर्निंग है या टीचर्स की जो कैपेसिटी है वो किस लेवल तक ट्रांसफॉर्म हुई है, उसमें कितनी चीज़ें आप समझते हैं कि जो पहले नहीं थी अब वो है, क्लास में वो चीज़ें नहीं थी अब हो रही हैं, टीचर्स के अंदर वो चीज़ें नहीं थी लेकिन अब वो हो रही हैं। तो क्या समझते हैं किस लेवल पे वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं और वो कौन सी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ट्रेनिंग का नाम आता है ना, हमारे दिमागों में पहले ही आ जाता है बीएड, एमएड और ज़्यादा हम अपडेटेड आ जाते हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग। फिर और ये सीपीटी जब आई तब भी यही चीज़ थी, हमारे टीचर्स यही कह रहे थे, मैडम आप ट्रेनिंग तो देकर जाओगे फिर ये अप्लाई नहीं होगी और फिर फॉलोअप नहीं होगा और बस यही गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब सीपीटी चली तो टीचर्स जब ट्रेनिंग लेना शुरू की तो उनको पहले जो माइंड में था भाई सिलेबस, अब सिलेबस से हटकर वो करिकुलम पर आ गई है। और उसके बाद वो अप्लाई जो था टीचर पर, जो हम कहते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करना, पहले हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों की रिज़ल्ट आप देखें वहाँ अटेंडेंस काफ़ी कम थी, लेकिन अब आप हमारे क्लस्टर में आकर देखें बच्चे, पेरेंट्स आ रहे हैं, भाई जगह नहीं है कोई बात नहीं, दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा, सीखेगा तो सही ना है, सीखने का तो अमल है। हाँ, सीखने की जो है वो देखें वो क्या है, बच्चे एक्टिव हैं हमारे मेन गोल क्या है, हमारी चाइल्ड, हमारे बच्चे जो हमारे स्कूलों में आए एक्टिव लर्निंग हासिल करें, उनमें इन्वॉल्व हों। और जहाँ जहाँ इसमें क्लस्टर में मेन चीज़ मैंने पहले भी जिक्र किया था, जहाँ स्कूलों में टीचर्स ज़्यादा थे, फ्री बैठे हुए थे, जंग लग रहा था उनको, फिर जैसे जैसे सीपीटी अटेंड कर रहे थे तो वो खुद ही वो कह रहे थे तो हमारे पास बच्चे आना शुरू हो जाए। उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी में वो कहना शुरू किया, भाई भेजो तो सही, जो लेबर चाइल्ड लेबर है उनमें भी शौक पैदा किया, भाई आ जाओ यहाँ, आपको एजुकेशन मिलेगी, हुनर मिलेगा, पूरी ज़िंदगी आप नौकर बनकर बैठो उससे तो अच्छा है आप हुनरमंद हो जाओ, एजुकेशन ले लो, आगे निकलो, यहाँ से आगे दुनिया और भी है, सिर्फ ये नहीं है। ये काफ़ी चेंज आया है कम्युनिटी में। और जो हमारा मेन गोल है, जो हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, मेरा ख्याल है ये क्लस्टर पॉलिसी इंशाल्लाह कंटिन्यू चलती रहेगी तो वो गोल भी हम अचीव कर लेंगे। काफ़ी ये मेरे क्लस्टर में तो बहरहाल ये चीज़ें काफ़ी आई हैं। और टीचर्स की जो लुक आफ्टर हो रही है, गाइड जा रहे हैं, क्लस्टर हेड जा रहे हैं, सेल हेड जा रहे हैं, सेल हेड एक्टिव है मेरे क्लस्टर में। और जो फोकल पर्सन या गाइड टीचर में भी था, वहाँ मेरे क्लस्टर हेड में जो फोकल पर्सन था अभी तो LSU पर आकर बैठा है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हमारे क्लस्टर बने ये पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा। सेल हेड है, अगर कोई क्लस्टर हेड चेंज भी हो रहा है, सेल हेड बैठे हुए हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है मेरे गुलजान। वो जैसे सीपीटी हमारी चल रही है, कोई आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, टीचर को बखूबी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे अंदर चेंज आ रहा है, हमारे बच्चों में चेंज आ रहा है। चेंज हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से नजर आए, हमारे बच्चों में से। जब जिस जगह आपके बच्चे मौजूद हों, एक्टिव हों और कहीं ना कहीं वो निकलने की कामयाबी की निशानी आपको मिले, इसलिए गवर्नमेंट ये क्लस्टर पॉलिसी कंटिन्यू करेगी तो इंशाल्लाह हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। थैंक यू मैडम, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सक्सेस। और उसमें आपने ये कहा कि एनरोलमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। एंड यू ऑल्सो टॉक अबाउट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि जो इस पॉलिसी का एक विजन भी है कि आपके सराउंडिंग में जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूल तक लाना है।
और आपने ये कामयाबी बताई कि अब हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग कह रहे हैं कि खड़े होकर भले पढ़ने लेकिन हमारे बच्चे स्कूल आएंगे। अच्छा, हमारे साथ गाइड टीचर भी मौजूद हैं। किरण याकूब is there and she is working as a guide teacher. Guide teacher has a mediating role कि वो जो कंटेंट है उसको खुद उस पर ट्रेन होना है, फिर फील्ड में जाना है, और आपके पास एक ट्रायंगुलेट है कि आपने हेड के साथ भी मीटिंग्स करनी है और फिर जो है वो टीचर के साथ भी करनी है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से परमिशन भी लेनी है और जाके क्लास में जो है वो कुछ इंटरवेंशन भी करनी है। So tell us about your experience. What kind of challenges was there? और फिर जो है वो कौन सी सक्सेस आपने जो है नोटिस की? Thank you, sir. You have given me chance to speak up. Ground realities हमारे पास ये है कि पहले क्योंकि because the officials, means government officials, were not aware about this project, so the permission was taken was very difficult. But slowly and gradually it increases and they know about this free model. Then we got the permissions from our DOs, directors, TOs, and then got the permissions from cluster head. Now our school head teachers are having knowledge about the CPD model, so they gave us permission for this project and roaming from one school to another school. So we have worked a lot on this ground. On the ground level, there are so many other issues as well which we have faced. First thing, like if we already my seniors has told us that in this model there is a follow-up implementation on the ground level. But I think and I will suggest and I will advise to the government officials that they should continue this project up to more than cycles we have left. I think already I have learned from universities, stakeholders, private stakeholders, NGOs, departments, organizations, they work for us, but actually government don't implement and follow these kind of trainings or modules. But this was the first project even I have trained from different cities as well. So I think they have supported, but even more their support is more needed because they will left us. The other organization will left us from 31st October, I think. So I think if they will continue, we can follow or implement our remaining learning cycles, which are from 11 to 20, which we have already grip on that. We have trained, we have learned about them. So I would suggest and advise that they will support us. Then we are already motivated from this project, and our students are actively participating in the classroom due to activity-based strategies. So we are motivated, but motivation comes from the senior officials as well. Thank you for your response. And now we have another guide teacher, Mehman, who is also working as a guide teacher. तो सबसे हम ये पूछना चाहेंगे कि you cooperate with your subject coordinators and you visit class and you interact with the children, students. So what kind of success have you observed? आपने कौन सी चीजें observe की हैं कि जो larger scale पे implement करने के लिए आप recommend करेंगे? शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इससे पहले प्रेजेंटेशन में डिस्कस की थी मोटिवेशन। सबसे पहले मेरी मोटिवेशन स्टार्ट हुई मेरी टीम से, क्योंकि बजट तो था ही नहीं, सबको पता है, हेड ने भी हमें बताया। तो हमने सोचा कि हम बजाय 1000-1200 रुपये यही टेक्निक पता है, जी बजट के बगैर मोटिवेशन नहीं सर, वही बता रहा हूँ सर, बजट के बगैर वाली बात ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने मोटिवेशन अपनी टीम को किया। जब मैडम ने मुझे फोकल पर्सन किया, गाइड टीचर की हैसियत से आगे भी किया, तो सबसे पहले मोटिवेशन मेरी स्टार्ट हुई मेरी टीम से। उनसे मैंने कहा कि 200-200 रुपये भरते हैं
और जो हैंडआउट्स वाली बात किसी ने की थी, इधर प्रेजेंटर ने किसी ने की, तो हमने ग्रुप वाइज हैंडआउट अपनी जेब से प्रोवाइड किए। हमने लो कास्ट मटेरियल भी इस्तेमाल किया, A4 साइज के पेपर्स भी इस्तेमाल किए। तो मेरी जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ टीम जो थी, तो बेसिकली देखिए टीम होती है, पहले टीम अगर कोऑपरेट आपके साथ करते हैं फिर सारा हो जाता है। सबसे पहले जब हम जब एज ए गाइड टीचर हम सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को ट्रेन करते हैं, फिर हम जब फील्ड में मूव करते हैं एज ए मूवमेंट प्लान के थ्रू मूव करते हैं, तो क्लासेस में जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो पहली चीज़ हमारे आड़े आती है, क्योंकि जो मेन चीज़ हमें बोलते हैं कि सर हमने 10 साइकिल अटेंड किए, ट्रेनिंग अटेंड की, तो हमें क्या मिला, तो वो सर्टिफिकेट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं एज ए रिवार्ड। पहली बात तो ये रिवार्ड मिलेगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो और ज़्यादा काम करेंगे। दूसरे, अभी इस प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने तकरीबन कोई 35 से 40 इंटरव्यूज़ मैंने किए थे, उसमें से 10 to 15 बच्चों के साथ भी मैंने किए थे। तो एक बच्चे ने मैं वीडियो इसमें इंक्लूड नहीं कर सका, बच्चे ने बोला कि सर ने हमें टॉपिक पढ़ाया, पोगो से वीडियो दिखाई और सर ने मोबाइल पे दिखाई, छोटा सा स्पीकर लाया था और फिर हमें वो समझ में आ गया और बच्चे ने फटाफट से मुझे बोलना शुरू कर दिया। तो अब एक चीज़ तो है मोटिवेशन खाली स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को भी चाहिए, तो टीचर्स के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, मेंटी टीचर्स के लिए। दूसरी बात, हमारी टीम मोटिवेटेड है, हमने आज तक कभी भी फाइनेंस के लिए किराया नहीं किया। मैडम शायद बैठी हुई है, हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं, हमने किराया नहीं किया, क्योंकि हमें अपना बच्चा नजर आता है, कल को हमारे बच्चे भी इधर ही होंगे। दूसरी बात, और फ्रूटफुल लेने के लिए HMs का कोऑपरेशन जो है वो नेसेसरी है। जब तक स्कूल का HM आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता तो आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, आप उस तरह से चीज़ें पहुंचा भी नहीं सकते। तो जो HMs है फीडर स्कूल के या सेल स्कूल के, उनका कोऑपरेशन मस्ट है उनके। अब उसके बाद टीचर्स को मोटिवेट करना, तो मोटिवेट करने के लिए कभी कभार हमें 2 स्टेप पीछे भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना, शेर पीछे जब जाता है तो 2 बड़ा जब मारने के लिए जाता है। So what were your 2 steps backward? वो हमने उठाए थे इसलिए कि वो थोड़े सीनियर्स भी थे और हमारे लिए चैलेंज भी था। तो हमने उनको बोला कि सर हम कुछ नहीं जानते, आप हमें बताएं। उनको हमने आके स्टेज पे आगे कर दिया और उन्होंने हमें फिर सिखाया। फिर हमने बोला सर ये चीज़ अच्छी है, ये आप करें, यही हम रिकॉर्ड करेंगे। और यकीन मानेंगे हमारे जो क्लस्टर में 40% सीनियर टीचर्स हैं और मेजॉरिटी कोऑपरेटिव, वीडियोस भी भेजते हैं और हम जब जाते हैं मॉनिटर करने वो भी करते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है स्कूल्स में होनी चाहिए, चाहे CPD प्रोग्राम के थ्रू एक गाइड टीचर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर ऐसे कोई जो मेंटोर कोई उठा ले इस टाइप का, बजाय स्टाइपेंड देने के आप जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करें स्कूल्स में। एक पीरियड उसका भी होना चाहिए। जैसे हम जलसे में लिखते हैं कि भाई लंगर का इंतज़ाम है तो क्राउड हो जाता है, तो स्टाइपेंड से क्राउड जमा किया है हमने, एजुकेशन नहीं भी, हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि अटेंडेंस हमारी है नहीं स्कूल्स में। अटेंडेंस को मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात, आपने रिजल्ट की बात कही, एक चीज़ हमारे पर भी हो जाए, हमारी मॉनिटरिंग इफेक्टिव होनी चाहिए कि आया जो गाइड टीचर सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर फील्ड में काम कर रहा है सही तरीके से कर भी रहा है कि नहीं, टीचर को सही तरीके से मोटिवेट कर भी रहा है कि नहीं। तो ये जो मॉनिटरिंग वाला इशू है, अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आपको ना सिर्फ CPD स्कूल लेवल पे हर जगह पे आपको रिजल्ट्स इससे बेटर मिलेंगे। बाकी चैलेंज जो मैंने साइड बाय साइड डिस्कस कर लिए हैं, HMs का चैलेंज सबसे बड़ा था, उसके बाद सीनियर जो टीचर्स का था, उसके बाद तो फाइनल से हमने किराया कभी किया ही नहीं है। हम तो सेल्फ मोटिवेटेड है तो हम सब कर सकते हैं, हमने किया है। थैंक यू सर।